स्क्रीन शो हो रही है मैम आपको? ओके। Okay. So, good morning everyone. Today we start our the next class regarding the intellectual property law. Till now we just get the brief discussion regarding the what type of intellectual properties right we have in respect of like a copyright, patent, trademark, trade secret and geographical indications. Now first we go with the theories of the intellectual property right. Some of the basic theories are available regarding the intellectual property right. बहुत सिंपल सिंपल से थोड़ा सा बस उसका जिस्ट हम लेंगे. One is natural theory, second is utilitarian theory. My spelling may be wrong. And next is a labor and reward theory. Labor and reward या फिर ethic and reward, और last is a personhood theory. As per the nomenclature we can be recognized what is the meaning of them. Natural law theory simply says that the it's a creation of a nature. First of all, they look, every property, or if I say the word property in a law first class I said, the when I said the word property we decide what is mine, what is you. जब हमने प्रॉपर्टी बोला तो हमने ये डिसाइड करा कि ये मेरी है. प्रॉपर्टी ऑनरशिप के साथ आती है. अपार्ट फ्रॉम दैम इफ आई डिस्कस अबाउट द रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज तो सबके हैं. सेम विद द, अब रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है इस सोसाइटी में, इन्वायरमेंट में बहुत सारे न्यूमरस रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन हमने लेबर से उसको जब उसमें ट्रांसफ़र करा, एज अ राइट क्रिएट करा, जब हमने अपने लेबर से अपने स्किल से उस रिसोर्सेज को प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करा, तब उसका यूज हमें मिला. इज इट और नॉट? Simply by virtue of the labor we convert the resources as into a asset. That's in a simple way. And who create that assets, who convert the resources into assets are come with the natural law. Wait a minute. So I just said ki who create that resources into assets by their labors and by their skill, that is the natural law. In a similar way, some of the disturbances occur outside. And in a similar way, the person who create the intellectual things, जिसने अपने आप को intellectual things create करी है, जिसने अपने आप कोई igniting mind से some of the create by themselves, that is also his own skill. तो उसने खुद के लिए, जब हम लेबर को उसको उसका राइट दे रहे हैं, अगर हम कोई लेबोरियस वर्क करके रिसोर्स को एसेट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जो एसेट्स आ रहा है वो वही बंदा लेगा जो कन्वर्ट कर रहा है. सिमिलर विद द माइंड थॉट, similar with their the intellectual thought, whatever you get from your thought process with your skills, that is also be deemed as your the right. That is the natural law theory कि जो naturally जो आपने own self create करा है from the external world, that is it's yours. No one can be take it back from you. That's why we create the intellectual property right. Clear? Second thing is said the utilitarian theory. If you remember the Bentham's utilitarian theory, maximum pain, maximum pleasure. It's about completely about the utility. Whoever create the law, whoever create the property, he will be definitely use it. If I make the property, I just create some concept. If I create a car, suppose I just make an invention, so definitely I will be used. नो वन कैन बी. तो अब जो मेरी प्रॉपर्टी है, जो मेरा क्रिएशन है, ओनली आई विल बी यूज सिंपली. नो वन कैन एनी अदर यूज. ऑन दैट सिनेरियो वी क्रिएट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कि इट्स योर इन्वेंशन. we create the confirmation and certification regarding that intellectual property right कि whatever you create it's completely yours. ठीक है, यहाँ पे ये वर्क कर रहा है यूज के बेस पे, और यहाँ पे ये वर्क कर रहा है कि हु आर क्रिएटेड. जो क्रिएट करेगा वो उसको यूज करेगा, वो उसका ओनर रहेगा. दैट्स व्हाई वी क्रिएट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. यहाँ पे है कि जो अपनी यूजफुलनेस के लिए उसको क्रिएट कर रहा है, अपनी हैप्पीनेस के लिए कर रहा है, तो वो उसको यूज करेगा. Next is about the labor or reward, labor and reward and ethic and reward. It simply is said that whoever creates something, he have to be get that reward. अगर हम उसको उसका रिवार्ड ही नहीं देंगे, रिवार्ड कैन बी इन टू सेंस, आइदर बी अ फेम और बी इन अ मनी. किसी भी सेंस में हो सकता है रिवॉर्ड. इफ बाय क्रिएटिंग द इन्वेंशन यू वांट टू गेट द फेम फ्रॉम द सोसाइटी,
या फिर आप पैसा क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो उसको रिवार्ड एथिकली उसको मिलने भी चाहिए, बिकॉज इट्स इट्स वर्क। क्लियर? Last is about the personhood. By virtue of this theory, it says that the intellectual property right is not merely an invention and assets. It's a personality of a person. So many times the people use their name with their inventions. वो अपने invention का नाम ही अपना नाम रख देते हैं. वो they are connect your them personality with that inventions. So if the person who create the personality himself after the so many hard work, how can he take it back from him? It's completely it's it. That's why as per to safeguard of the personality, we have to be create the intellectual property laws and intellectual property rights. Clear? That is the fourth theory regarding the intellectual property: nature, utilitarian, labor, ethic and reward, and the person. If you create as like a nature, in a nature you create something similar where you create the intellectual mind, so it's you will be the right, have the right of them. You create something, you use it, it's you only have the right to use of them, and you only decide who will use it. It's a utilitarian theory. Labor and ethic and reward is simply said that if you do something after a lot of the hard work, then you will get the reward. No one, anyone can get the reward apart from you. And the last, the personhood, your invention, your personality, you create that personality yourself, you will be use it. No one can be restrained to use it. Done? पर्सनैलिटी का क्या है कि जब आपने कोई इन्वेंशन करा, यू अटैच दैट इन्वेंशन विद योर पर्सनैलिटी. हमने इन्वेंशन को ही अपना नाम दे दिया या फिर अपना जीवन ही दे दिया, तो नाउ नो वन कैन बी रेस्ट्रेन इट. अब वो इन्वेंशन आपके नाम से ही जाना जाएगा और आप ही को उसके बेनिफिट्स मिलेंगे, बिकॉज यू स्पेंड हिज होल लाइफ फॉर दैट इन्वेंशन. दैट इज द पर्सन. क्लियर? अब हम चाहेंगे इनके राइट्स के ऊपर. इंटरनेशनल राइट्स कैसे कैसे क्रिएट्स हुए. लास्ट टाइम इन लास्ट क्लास आई डिस्कस अबाउट द सम ऑफ द राइट्स. नाउ वी गो विद द कि वो राइट्स कैसे कैसे आए, कैसे कैसे कन्वेंशन स्टार्ट हुई. द फर्स्ट कन्वेंशन इज द पेरिस कन्वेंशन, दैट इज 1883. देन इज द बर्ने कन्वेंशन, दैट इज 1886. देन इज द यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन in 1952. Then is the World Intellectual Property Organization. It come in 1967. Last is the TRIPS, Trade Related Intellectual Property System, and World Trade Organization. ये दो ऑर्गेनाइजेशन एक साथ आई in 1995 आफ्टर ऑर्गो कन्वेंशन के तहत. सबसे पहले हमने क्या निकाला, सॉरी, इफ यू remember, two things we create: initial treatment and equal protection. Equal protection, same time. हम कन्वेंशन समझेंगे. यू हैव टू बी मेमोराइज दिस पार्ट. ईयर्स आपको पता होने चाहिए और उसका कन्वेंशन की आउटपुट पता होनी चाहिए. जब हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की स्टार्टिंग करी, तो सबसे पहले हमने ये कहा कि whoever the signing of that conventions, they treat the invention of any country as like their the own country invention. किसी भी जो भी इस पेरिस कन्वेंशन में जो साइन कर रहा है, उनमें से किसी भी कंट्री के पास कोई इन्वेंशन आती है, किसी भी कंट्री में कोई इन्वेंशन रजिस्टर्ड होती है, तो बाकी सारी कंट्री भी उसे ऐसे ही ट्रीट करेंगे जैसे उनकी यहाँ इन्वेंशन हुई है. क्लियर? और इक्वल क्या पेरिस कन्वेंशन में कितने लोग थे? ओके ओके ओके, आई विल बी कंफर्म इट. आई डोंट थिंक कि ये पीडीएफ में प्रोवाइडेड होगा. लेट मी चेक. It's not provided in PDF and I also don't have any idea about it. I will be give the numbers if I found. Okay, don't worry, I will give it. ठीक है. It's a nice question. It can be come in a exam कि भाई कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट करा है. ठीक है, आउटपुट पे हम चलते हैं. एक तो नेशन ट्रीटमेंट है, दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन. इक्वल प्रोटेक्शन इज सिमिलर लाइक नेशन ट्रीटमेंट. इट जस्ट ओनली सेज दैट कि जैसे जो प्रायोरिटी फ्रेमवर्क है, इट्स लाइक दैट कि प्रोसीजर फॉर्मेलिटीज, जो प्रोसीजर फॉर्मेलिटीज है, रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है,
वो सब, जैसे किसी कंट्री में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो गया तो वो उस कंट्री का ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दूसरी कंट्रीज में अडॉप्ट करा जाएगा। इट्स मीन्स कि जैसे मैंने कोई इन्वेंशन करी, मैंने इंडिया में रजिस्ट्रेशन करा लिया, तो अमेरिका ये नहीं कह सकता जी ये तो ईजिली दे देते हैं को पेटेंट, ईजिली कॉपीराइट दे देते हैं, हम इसे ट्रीट नहीं करेंगे। अब आपको वो बात माननी पड़ेगी बिकॉज यू आर द साइनिंग मेंबर ऑफ दैट कंट्री। आप ये नहीं कह सकते कि इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अलग है, ठीक है। नाउ 1886 बर्ने कन्वेंशन कम, इसमें इनिशियल ट्रीटमेंट मिला, इक्वल प्रोटेक्शन मिला लाइक ऑन अनदर, और फॉर्मेलिटीज डिसीजन मिला। जो ऊपर वाली बात थी कि फॉर्मेलिटी डिसीजन की हाउ टू गेट द रजिस्ट्रेशन, वहां पे बाद में क्वेश्चन रेज होने लगे। किसी ने कहा ऐसा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, किसी ने कहा ये फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए, किसी ने कहा ये फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए। देन द बर्ने कन्वेंशन क्रिएट अ सम स्पेशल परफॉर्मा ऑफ फॉर्मेलिटीज एंड दे सेड दैट विल बी फॉलोड बाय द एवरी नेशन, ठीक है। उसने वो चीजें ही खत्म कर दी क्योंकि हर कंट्री फिर उस पर ऑब्जेक्शन रेज करने लगी, और वो फॉर्मा दे आर गिव द इंडिपेंडेंट राइट टू द कंट्री कि वट एवर द फॉर्मेलिटी प्रोसेस दे वांट दे कैन बी डिसाइड। लास्ट रेजिडोरी पावर उन्होंने कंट्रीज के हाथ में छोड़ दी। अब कोई डेवलप्ड कंट्री ये नहीं कह सकती डेवलपिंग कंट्री से कि तेरी फॉर्मेलिटी इजी और मेरी फॉर्मेलिटी टफ है, कोई इस बात पे नहीं करेगा। आपने जो फॉर्मेलिटी डिसाइड करी है, आपके बंदे ने वो फॉर्मेलिटीज पूरी करी, देन ही गेट द कॉपीराइट, और एवरी कंट्री ट्रीटेड दैट कॉपीराइट देयर एज देयर द ओन इन्वेंशन, ठीक है। अब हम आते हैं यूसीसी पे। यूसीसी ने क्या कहा, नेशनल ट्रीटमेंट दिया, इक्वल प्रोटेक्शन दिया। अब उसने कहा कि टेन्योर कितना है, यू डिसाइड द कॉपीराइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आपने डिसाइड करा। यूसीसी रेज द क्वेश्चन कि कब तक रहेगा, पेटेंट का राइट कब तक रहेगा, या फिर मैं बात करूं कॉपीराइट का राइट कब तक रहेगा, तो डू वी हैव टू बी सम द लिमिट। तो इन्होंने कॉपीराइट में सिर्फ एक लिमिट डिसाइड करी, व्हाट दिस सेज दैट ऑथर लाइफ प्लस 25 ईयर। ऑथर जब तक जिंदा है तब तक उसको कॉपीराइट का रॉयल्टी मिलेगी, उसके बाद 25 साल और, ठीक, दैट इज द टेन्योर। अपार्ट फ्रॉम दैट सिर्फ इतना इसने टेन्योर स्टार्ट करा, पेटेंट वगैरह का भी नहीं दिया। उसके अलावा इसने एक बात रखी, मिनिमम राइट्स की। अब क्या सिनेरियो हुआ कि यू स्टार्ट द कन्वेंशंस एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बन गई। अब डेवलप्ड कंट्री बहुत सारे राइट्स दे रही है, बहुत सारे प्रिविलेजेस दे रही है। अंडर डेवलप्ड कंट्री या फिर डेवलपिंग कंट्री, दे आर नॉट गिव एनी दैट मच अमाउंट ऑफ राइट्स एंड प्रिविलेजेस। सो इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन UCC come in picture and they decide at least minimum right. They decide at least minimum right कि that amount of right you have to be give to them. That they make the list like a UN charter. If you remember the UN charter concept कि हमने UN charter बनाए और ये कहा कि इतने ह्यूमन राइट्स तो सबको मिलने चाहिए. They make the list. In a similar way they decide the list कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में इतने राइट्स तो सभी कंट्रीज को एक दूसरे को देने होंगे. Whoever give the copyright. Clear? मैक्सिमम कितने ही दे सकते पर मिनिमम ये थे. ठीक है. नेक्स्ट कम विद द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन 1967. दे सेड दैट कि इट्स ओके यू क्रिएट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, नीशन ट्रीटमेंट, इक्वल ट्रीटमेंट, मिनिमम राइट, ओके विद दैट. बट द क्वेश्चन इज रेज कि हु विल प्रोटेक्ट देम if the any adversarial party come, any dispute come, who will be resolve it? Then they make a organization, World Intellectual Property Organization, where you can go for the legal enforceability. भाई लॉ जब उसको इन्फोर्स करा जा सके. अगर इन्फोर्सेबिलिटी नहीं है, there is no anything left with the law. Clear? That is the legal enforceability. यहाँ पे हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लगभग सारे कन्वेंशंस और सारे ऑब्जेक्ट्स हैज बीन कंप्लीट नाउ. आफ्टर दैट देयर इज अ वन कन्वेंशन इज आल्सो कम, दैट इज थ्रू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और ट्रिप्स एग्रीमेंट हमारे पास आया, ट्रेड रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम. व्हाट दे सेड दैट दे आर गोइंग टू फ्रेम द लॉ. अब तक ना हमने मोटी मोटी बात करी कि ये होगा वो होगा, इस पे डिसीजंस लिया जाएगा, ऐसे लिया जाएगा, बट नथिंग आर कंप्लीटली सेटिस्फैक्ट्री कम. तब इन्होंने कहा कि भाई लॉज बनाओ और हर कंट्री अपने अपने लॉ बनाएगी. दे विल प्रोवाइड द एड टू देम. उसके बाद इंडिया में फिर क्या कहते हैं, उसके बाद हर कंट्रीज में पेटेंट एक्ट, कॉपीराइट एक्ट, ज्योग्राफिकल डिजाइन एक्ट, सब तरीके के एक्ट है. इंडिया ने कुछ एक्ट पहले बना रखे थे, कुछ बाद में आए. और इन्होंने ये सारे लॉज, देखो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आपने बना दिए, लेकिन सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मेन यूज और मेन जो इन्फ्रिंजमेंट होता है वो तो ट्रेड में होता है ना.
ट्रेड सही चल रही है कि नहीं चल रही। तो जो बंदा सामान बेच रहा है क्या उस पर उसका कॉपीराइट है या फिर उसके पास उसका ट्रेडमार्क है या नहीं है, दैट इज द कंफ्यूजन। तो ट्रिप्स ने उस चीज को मॉनिटर रेगुलेट करने का एक प्रोसेस जिम्मा उठाया कि मैं ट्रेड में देखूंगा कि ट्रेड में कोई इन्फ्रिंजमेंट तो नहीं हो रहा, और मैं सारी कंट्रीज को हेल्प करूंगा लॉ मेकिंग में। दो काम ट्रिप्स ने करे, एक तो उसने ट्रेड देखी और उसने लॉ मेकिंग प्रोसेस में हेल्प करा। आफ्टर मेकिंग द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रिप सिस्टम वी मेक द क्लियर विद द एवरी काइंड ऑफ लॉ। अब हमारे पास लॉ डेवलप हो चुका है, ट्रेड में हम कोई भी डिस्प्यूट होता है उसको मेजर कर लेते हैं। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन पे लीगल इन्फोर्सिबिलिटी के लिए चले जाते हैं। 10 ईयर्स वगैरह नेशनल ट्रीटमेंट एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑलरेडी हैज बीन गिवन। क्लियर? So TRIPS are especially make a dispute settlement mechanism, fix the standard of a intellectual property। एक चीज और उन्होंने कही, स्टैंडर्ड सेट करा कि भाई कॉपीराइट लेते हो तो ये होने चाहिए, पेटेंट होते होने चाहिए। दे आर डिसाइडेड द एसेंशियल क्वालिफिकेशंस रिगार्डिंग द पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, व्हाटएवर दे सी। क्लियर? नाउ वी कम विद द 10 ईयर। फिर उन्होंने अब कॉपीराइट में सॉरी सारे इसमें क्या क्या 10 ईयर्स की लिस्ट बनाई, कब तक रहेंगे। जो कॉपीराइट है वो आपका रहेगा लाइफ ऑफ ऑथर प्लस 50 ईयर। जो भी चीज आपने क्रिएट करी है, सपोज आई एम द ऑथर, आई राइट अ बुक, तो जब तक मैं जी रहा हूं तब तक और मेरे मरने के 50 साल तक। ठीक है? इफ सपोज इफ आई डाइड इन क्या चीज 25 ईयर्स है ना सर? नहीं, अब जो एक्ट बन रहे हैं उसमें 50 है। अगर आता है यूसीसी में कितना था तो उसमें तो 25 था, लेकिन आता है कॉपीराइट एक्ट में कितना है 1957 कॉपीराइट एक्ट ऑफ इंडिया, तो उसमें लाइफ ऑफ ऑथर प्लस 50। इसमें कंफ्यूजन ना करना, ठीक है? और लाइफ मतलब डेथ के बाद, अगर 2000 में डेथ होती है तो 2050 तक मेरे पास कॉपीराइट एक्ट रहे, कॉपीराइट का राइट रहेगा। ठीक है? पेटेंट का सीन है 20 ईयर्स। आई मेक अ इन्वेंशन टुडे, मैंने पेटेंट करा लिया तो 20 साल तक कोई भी व्यक्ति अगर उसे यूज कर रहा है तो या तो मेरी कंसेंट ले और मुझे रॉयल्टी पे करे, अदरवाइज वो इन्फ्रिंजमेंट में आएगा। ठीक है? इन अ केस ऑफ ट्रेडमार्क इट्स अ इन्फिनिटी। अगर ट्रेडमार्क आज आपको मिल जाता है तो वो लाइफ टाइम आपके साथ है, जब या तो कंपनी डिसॉल्व हो जाए या फिर आप उस ट्रेडमार्क को ही सेल आउट कर देते हैं। अदरवाइज ट्रेडमार्क कैन नेवर बी कम टू एंड। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है आपका, कोई कार कोई मॉडल है तो वो 10 साल के लिए है। अगर कोई भी आपका इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है दैट इट फॉर ओनली द 10 ईयर्स। एंड जोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग जिसे हम बोलते हैं दैट इज आल्सो फॉर 10 ईयर्स। जीआई टैग के साथ स्पेशली प्रॉब्लम रही कि जब हमने जीआई टैग स्टार्ट करा तो वी सेड दैट कि हाउ कैन वी लिमिटाइज द जीआई टैग। अगर मैं कहता हूँ कि ये चीज़ इस जगह की फेमस है, I give the geographical indication to the particular product for a particular geographical origin, तो मैं 10 साल बाद ये थोड़ी ना कह सकता जी अब नहीं है इस जगह के लिए फेमस, वो तो आज भी है कल भी रहेगी। रसगुल्ला ऑफ कैलकाटा ऑलवेज भी फेमस फॉर कैलकाटा। अब ये थोड़ी ना कहेंगे जी अब तो मद्रास का फेमस हो गया या फिर अब तो क्या कहते हैं चेन्नई का फेमस हो गया या फिर हरियाणा का फेमस हो गया, वो तो कैलकाटा का ही फेमस रहेगा ना। तब वहां पे इन्होंने ये कहा कि बाय वर्च्यू प्रोवाइड द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ओनली फॉर द 10 ईयर्स वी प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी इक्वल अपॉर्चुनिटी टू द एवरी पार्ट ऑफ अ ज्योग्राफी टू मेक समथिंग न्यू विद देयर प्रोडक्ट। अगर आज कलकत्ता का रसगुल्ला फेमस है, आप कुछ ऐसा प्रूव कीजिए कि आपके रसगुल्ले में कुछ अलग यूटिलिटी आए, अलग उसका फीचर आए, अलग करेक्टरिस्टिक्स आए और अलग टेस्ट आए, देन वी गिव द आफ्टर 10 ईयर जीआई टैग टू यू कि आपका अलग है और बेस्ट है। अगर मैंने कंफर्म कर दिया तो वो तो फिर लाइफ टाइम कलकत्ता का ही फेमस रह जाएगा, बाकी सब शेफ तो अपनी रेसिपी बनाना छोड़ देंगे जो कलकत्ता से बिलोंग नहीं करेगा। तो दैट्स वाई गिव द ओनली फॉर 10 ईयर्स। इंडस्ट्रियल डिजाइन सिंपली 10 ईयर्स है भाई, 10 ईयर के बाद आपको डिजाइन देना पड़े। पेटेंट 20, ट्रेडमार्क इन्फिनिटी एंड कॉपीराइट लाइफ टाइम टू 50 ईयर्स। क्लियर? इंडस्ट्रियल डिजाइन में 10 ईयर्स का क्या, 10 ईयर्स के बाद फिर क्या रहेगा सर? 10 ईयर्स के बाद कोई भी उस डिजाइन को कॉपी कर सकता है, एनीवन कैन। जैसे स्विफ्ट कार का डिजाइन आपने कभी नोटिस करा हो तो ये कुछ टाइम के बाद डिजाइन चेंज कर देते हैं, जबकि वो डिजाइन अच्छा खासा बिक रहा होता है, उसमें कोई कमी नहीं होती, फिर भी क्योंकि अब वो कॉपी होने की कगार पे आ चुका है। आफ्टर द 10 ईयर देयर इज अ चांस दैट एनीवन कैन बी कॉपी। जैसे स्कॉर्पियो का डिजाइन अभी इन्होंने चेंज कर दिया, जबकि स्कॉर्पियो का पुराना डिजाइन काफी अच्छा बिक रहा था।
because now to be go can be the copy by the anyone. Okay, sir. ठीक है, that is the industrial design. Clear? So these are the thing where we go with the first of all with the theories of intellectual property, right? Then there are the conventions which are going with that. You have to be read the PDF which I shared with you and clear with all the things, especially with the कन्वेंशन. कन्वेंशन बड़े ध्यान से ईयर बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, मैच द फॉलोइंग या आउटपुट आ जाते हैं. वन थिंग आई गेट विद यू कि मेंबर ऑफ कन्वेंशंस बताने हैं, वो मैं सर्च करके आई विल बी शेयर विद यू. ठीक है, ओके देन बाय. ओके सर. सर इसमें राइट था, राइट बताने थे वो सर. राइट विच वन? राइट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के सर आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में क्या राइट होंगे? कॉपीराइट और कन्वेंशंस में लाइक दैट कि कॉपीराइट में क्या राइट होंगे, पेटेंट में क्या राइट होंगे. ओके, लिसन, इफ यू टॉक अबाउट द राइट्स कि राइट यहाँ क्या है, जैसे मैं कॉपीराइट की बात करूँ तो जिससे रिलेटेड जितने भी मॉनेटरी राइट्स होंगे या पर्सनल राइट होंगे, दैट आर बी कम्प्लीटली वेस्टेड विद यू. इस कि भाई इस जैसे सपोज आपके कोई क्राफ्ट है या आपकी कोई बुक है, अब बुक की ट्रांसलेशन, बुक की अगर मैं बात करूँ तो उसकी ट्रांसलेशन, उसका नेक्स्ट चैप्टर, उसका रिवीजन, उसमें अमेंडमेंट, इट्स कम्प्लीटली वेस्टेड विद यू. कहाँ पे सेल होगी, कौन उसको सेल कर सकता है, पब्लिकेशंस क्या होगी, दैट इज कम टू यू. ठीक है, कहाँ पे शोकेस हो सकती है. पेटेंट की अगर बात करूँ तो कौन उसे यूज कर सकता है, कौन उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है, कौन उसका सेल कर सकता है, दैट ऑलवेज भी डिपेंड अपॉन यू एंड यू विल डिसाइड द शेयर कि भाई आप मैन्युफैक्चर कर लीजिए, मैं फॉर्मूला देता हूँ, इतना शेयर मैं लूंगा. या तो एक लमसम अमाउंट हो सकता है कि भाई इतने पे करके मैंने अपना पेटेंट बेच दिया, या फिर ये हो सकता है कि हर प्रोडक्ट में आपके प्रॉफिट में इतना शेयर लूंगा. दैट इज द राइट. सिंपली ट्रेडमार्क के लिए मुझे आई डोंट थिंक कि बताने की जरूरत है कि भाई ट्रेडमार्क जिसका है वो उसी का ही है, कोई और उस मार्क को यूज नहीं कर सकता. ठीक है, सेम विद द इंडस्ट्रियल डिजाइन, जोग्राफिकल इंडिकेशन. अगर कोई चीज किसी जैसे पंचीपेटा इज फेमस फॉर आगरा, देन यू कैन नॉट बी क्लेम दैट माई पंचीपेटा इज फेमस फॉर माई प्लेस. नो, इट्स पंचीपेटा अगर नाम है तो वो आगरा का ही है जी. हाँ, ये कह दीजिए कि हमारे यहाँ का पंचीपेटा अलग है, पर फेमस पंचीपेटा आगरा. अपने पेठे को आप आगरा का पेठा कह के नहीं बेच सकते. और अगर आपके पास आगरा का पंचीपेटा नाम करके कुछ बेच रहे हैं तो वो उसका मैन्युफैक्चरिंग आगरा ही होनी चाहिए. ये नहीं कि किसी से भी माल उठाया, आगरा की चिट लगाई कि आगरा से है जी और बेच दिया, दैट इज फ्रॉड. ठीक है, अगर आपने कह दिया आगरा का पंचीपेठा और आगरा के पंचीपेटे को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिला हुआ है तो वहीं का होना चाहिए, आगरा का ही मैन्युफैक्चरर हो, आगरा का ही डीलर हो उसमें. ठीक है, दैट इज द ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस. राइट्स आर नॉट दैट. राइट तो आप इजीली रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि किसमें किसी का राइट है या नहीं है. थिंक इज अबाउट कि कन्वेंशन कौन सी है, आउटपुट्स क्या हैं और थ्योरीज क्या है. ठीक है, कन्वेंशन में तो ये ही बताना ना सर उसका भी. हाँ, ये वाला 83, 86, 1952, 67 and 1995 एंड देयर द आउटपुट्स. ठीक है, चलो ओके देन बाय.